नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 20 करोड़ सदस्यों के टारगेट के साथ भाजपा के मेगा सदस्यता अभियान का आगाज, शहर जिले में भी शुरुआत। कांग्रेस ने फूका सुब्रमण्यम स्वामी का पुतला, राहुल गांधी पर दिए बयान का विरोध। और बजट में बढ़ा पेट्रोल डीजल पर टैक्स, लोगों का बढ़ेगा खर्चा। देश भर के साथ साथ वडोदरा में भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का आगाज किया गया। जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जन्म जयंती है। इस विशेष दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन पर्व 2019 अंतर्गत सदस्यता अभियान का आगाज देश भर में किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इस सदस्यता अभियान का आगाज आज किया। वडोदरा शहर में इस अभियान के प्रारंभ के लिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल आज शहर में आए। छाणी के गुरुद्वारा के सामने आयोजित इस समारोह में सांसद रंजनबेन भट्ट की उपस्थिति में अभियान का आगाज कराया गया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, मातरम, भारत माता की। इस मौके पर वडोदरा शहर आए पुरुषोत्तम रूपाला ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग, बजट में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर बात करते हुए उद्योगों को बजट समझने की जरूरत बताई। भारतीय जनता पार्टीना आद्य स्थापक અમારા શ્યામાપ્રસાદજીની જન્મ જયંતિને ઉપલક્ષમાં રાખીને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આખા દેશમાં સદસ્યતા અભિયાનને આજથી શરૂ કરવાના છે। આ પણ અમારી પાર્ટીની કાયમિક પરંપરા છે। એમના અમારા ટેન્યોર પ્રમાણે નવી સદસ્યતા અભિયાન અમે કરતા હોઈએ છીએ। આ વખતે પણ અમારા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી આજે એ સદસ્યતા અભિયાનને લોન્ચ કરવાના છે અને પછી સમગ્ર દેશમાં એ અભિયાન વિસ્તૃત રીતે સભ્ય નોંધણીનું શરૂ થવાનું છે। એના ભાગરૂપે આજે અહીંયા વડોદરા ખાતે મારે આવવાનું થયું છે। 20% લઈ અને 30% સુધી નવા સદસ્યો નોંધવા, શહેરી વિસ્તારોમાં 50% જેટલા લક્ષ્યાંકો પણ રાખવામાં આવ્યા છે અને એ રીતે આજથી સદસ્યતા અભિયાન શરૂ થઈ રહ્યું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી સર્વસમાવેશી પાર્ટી થાય, તમામ પ્રકારના વર્ગો એમાં જોડાય, તમામ વ્યવસાયના લોકો પણ એની અંદર જોડાય, એ પ્રકારના પાર્ટી દ્વારા પ્રયાસો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે ખૂબ ખુશીના એ સમાચાર છે। એક વહીવટી વડા તરીકેનો વિશાળ અનુભવ ધરાવતા શ્રી શંકરન એ આપણે ત્યાંથી ચૂંટાઈ અને ખૂબ અગત્યનો વિભાગ ભારત સરકારનો એ સંભાળવાના છે, ત્યારે એમને અંતઃકરણપૂર્વકની શુભકામના। અને ભાઈ જુગલજી અમારા ઉત્તર ગુજરાતમાંથી ઠાકોર સમાજના પ્રતિનિધિ તરીકે અમારી સાથે જોડાય છે, એ બંનેને એક રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે આવકારું છું। ક્રોસ વોટિંગ કરનારને ભાજપમાં સ્વીકારશે? ક્રોસ વોટિંગ ખાસ કરીને અલ્પેશ કરનારા લોકોને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સ્વીકારવા એ વિષય મારી દૃષ્ટિએ અમારે બહુ ચિંતાનો નથી। એ જે પાર્ટીમાં હતા એમણે એની ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા હતી અને કરવી જોઈએ। ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં તો આજે અમારી સદસ્યતા અભિયાન અમે શરૂ કર્યું છે ને દેશમાંથી જેને પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવવું હોય તે તમામને અમારું આમંત્રણ। ભારતીય જનતા પાર્ટીના નરેન્દ્રભાઈના વડપણ હેઠળની સરકારના બીજા ભાગના પહેલા બજેટમાં જે પ્રકારે બજેટને રજૂ કરવાનો પ્રયાસ થયો છે એ વાત સાચી છે કે એક્સાઇઝની અંદર ₹1 પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઉપર વધારો કરવામાં આવ્યો છે, પણ સાથે સાથે તમે જોશો તો જીવન જરૂરિયાતવાળી ચીજો અને ગરીબ માણસોને લગતી જેટલી બાબતો છે એમાં કોઈપણ જગ્યાએ કોઈપણ પ્રકારનો વધારો કરવામાં નથી આવ્યો, ઉલટી રાહત આપવા માટેનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે।
રાષ્ટ્રના વિકાસની આવશ્યકતાઓને ધ્યાને લઈ અને આ પ્રથમ બજેટ હોય એ દિશા તરફ લઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આગળ ઉપર એના પણ સમાધાનો શોધીશું. आज वडोदरा का मैक्सिमम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ लेते छोटा सा एक ब्रेक। आप बने रहिए VNM न्यूज के साथ। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है। रैकेट लेकर नहीं पैदा होता कोई, ना मैं कोई सुपर हीरो। हर एक दिन खिसाया है मैंने खुद को। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत हर किसी में होती है और ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी में हम आपको आपकी ताकत का एहसास कराते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का पुतला फूंकते हुए शहर कांग्रेस ने राहुल गांधी पर दिए गए बयान का विरोध किया। भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है और उन्होंने राहुल गांधी का डोप टेस्ट कराए तो फेल हो जाएंगे, ऐसा बयान दिया है। भाजपा नेता के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा के मार्गदर्शन में शहर कांग्रेस कमेटी ने अकोटा ब्रिज पर सुब्रमण्यम स्वामी का गधे जैसा पुतला बनाकर जलाया। આજે જે રીતે સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીજી માટે જે નિવેદન કર્યું એ નિવેદન માટે એમનું પુતળાદાન કરવામાં આવે છે, કારણ કે વારંવાર એ આવી રીતે નિવેદનો કરીને પોતાની જાતને હોશિયાર સાબિત કરવા માગે છે, પણ ખરેખર સુબ્રમણ્યમ સ્વામી ગધેડાનો રોલ કરી રહ્યા છે। કારણ કે કોઈ જવાબદારીપૂર્વક આજે નેતા હોય તો એમને જવાબદારીપૂર્વક નિવેદનો કરવા જોઈએ અને જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી એમને કોઈ પદ પર ના બેસાડતા હોય અને એમને મગજમાં પ્રોબ્લેમ હોય, દિમાગમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી ગયો હોય તો એમની સરકાર સામે રજૂઆત કરે, પણ રાહુલ ગાંધીજી માટે સ્ટેટમેન્ટ આપીને એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની વાલાદવલા થવા જાય છે। પણ આટલા વર્ષો થઈ ગયા, ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ જાણે છે કે મેન્ટલી એ બરાબર પરિપક્વ નથી દેશનું નેતૃત્વ કરવા માટે, એટલે એમને કોઈ જવાબદારી નથી આપતા। એનો જે ટોપલો રાહુલ ગાંધીજી પર આવી રીતે સ્ટેટમેન્ટ આપીને કરવામાં છે, એને લઈને અમે પુતળા દહન કાર્યક્રમ કરીને સુબ્રમણ્યમ સ્વામીનો અમે વિરોધ કરવાનો કાર્યક્રમ રાખેલો છે। आज वडोदरा का मैक्सिमम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ लेते छोटा सा एक ब्रेक। आप बने रहिए VNM न्यूज के साथ। GIHM Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey, 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। मोदी सरकार ने आम बजट में पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से देश भर में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। राजकोषीय मजबूती पर जोर देने के लिए सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बजट 2019 में टैक्स बढ़ा दिया है, जिसके चलते देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल सरकार के लिए आय के सबसे बड़े स्रोत में से एक है। शुक्रवार को पेश किए गए बजट में पेट्रोल और डीजल पर सेस और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 1 रुपए के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर वाहन चालकों की जेब पर पड़ने वाला है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल में बढ़ती दाम बढ़ते जाते हैं और कभी घट भी जाते हैं। ये हमेशा पेट्रोल का जो दाम है
वो क्रूड ऑयल की वजह से दाम बढ़ते घटते जाते हैं। परंतु इस बार जो बजट पेश किया गया है, उस मोदी सरकार के बजट में पेट्रोल की बढ़ोतरी की गई है और उसके बारे में हम आम जनता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। जैसे सर जी, ये जो भी बजट आया है उस पर जो पेट्रोल की बढ़ोतरी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? આમ તો કાયમ પેટ્રોલના ભાવ ઉતારવાની વાતો ચાલતી હતી, એના બદલે અત્યારે આટલો ભયંકર વધારો કરી ને પબ્લિકને માર પડે છે, બીજું કશું નથી થતું આમાં। એટલે વિનંતી કે પેટ્રોલનો ભાવ ઓછો કરો। જે પહેલાં જે પેટ્રોલનો ભાવ હતો ને હાલમાં એ જીએસટીમાં પણ નથી લેતા, તો તમારું એમાં શું કહેવું છે? આ પેટ્રોલને તો જીએસટીમાં લેવું જ પડે, એમાં કંઈ એ જ નથી। આપણને ખોટા ખોટા આશ્વાસનો આપે છે કે લઈશું, પરંતુ એ લોકો લેતા નથી। આ સામાન્ય પબ્લિક તો બેચારી આપણે હેરાન થઈ જવાની, આટલો બધો વધારો એકદમ કરતા રહી છે, એ ખોટું છે એક हिसाबे। जो बजट पेश किया गया उस बजट में जो पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी की गई उस पर आपका क्या कहना है? भाई पेट्रोल के भाव में जो बढ़ाया है, पेट्रोल और डीजल दोनों में बढ़ाया है। मोदी जी को इतना देखना चाहिए कि एक साथ में इतना ज़्यादा भाव नहीं बढ़ाना चाहिए। आप धीरे धीरे बढ़ाओ और कम भी करो और बढ़ाते भी रहो। आपने एक साथ में ही बढ़ा दिया है तो पब्लिक को इतना प्रॉब्लम होता है। वो लोग ऐसा समझते हैं कि भाई पेट्रोल और डीजल में लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन मेन चीज़ वही है, पेट्रोल और डीजल ही है। इसके लिए पेट्रोल डीजल का भाव इतना बढ़ाना नहीं चाहिए, मैं वही मानता हूँ। खास करके देखें तो लोगों की कब से मांग चल रही है कि जीएसटी में पेट्रोल को लाया जाए, डीजल को लाया जाए, हाँ, जिससे सही है, भाव हाँ। कम हो, बट अभी तक सरकार ने नहीं लिया। उस पर आप क्या? वही समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो सरकार पूरी भाजपा की सरकार आ गई है, पूरा इंडिया में आ गई है। बड़ौदा गुजरात में तो सही है, लेकिन पूरे इंडिया में भाजपा का अभी सब जगह पे लहरा रहा है ध्वज। तो उनको देखना चाहिए कि अभी जीएसटी में पेट्रोल डीजल लेके सब उनके 1,01,45,00,000 जो आदमी है उनको सबको राहत मिलनी चाहिए। तो वो मोदी जी को और ये भाजपा सरकार को देखना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आज जो पेट्रोल की बढ़ोतरी बजट में की गई है तो उस पर आपका क्या कहना है? पेट्रोल की बजट में की गई वो गलत है और ये वो नहीं करनी चाहिए। क्यों, इससे क्या तकलीफ होती है आम जनता को? आम जनता को तो बहुत तकलीफ होती है ना, क्योंकि भाव ज़्यादा ही देना पड़ता है ना, तो इसके लिए जेब में से पैसा जाता, पूरा देश का जाता है, तो सरकार को उसके पर सोचना चाहिए पब्लिक के लिए। जी का लोगों का भी कहना है कि पेट्रोल में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। आम लोगों ने कितनी बार जीएसटी पर में भी लगाने की बात की है, पर सरकार ने अभी तक उसे जीएसटी में नहीं लाया गया है। पता नहीं किस कारणों से नहीं लाया गया, पर जीएसटी में अगर ला दे तो पेट्रोल के भाव में भी थोड़ी राहत मिल पाएगी। कैमरामैन प्रवीण तड़वी के साथ मैं पार्थ मालूसरे, VNM टीवी के लिए। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. વડોદરા શહેરમાં VNM ટીવીના 21 વર્ષ પૂર્ણ કરી 22 વર્ષમાં મંગલ્ય પ્રવેશ કરે છે, એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। તેમજ વડોદરા શહેરમાં VNM ટીમ દ્વારા જે કંઈ असंख्य प्रयत्नों द्वारा जो न्यूज़ बताया है, स्वच्छ और सुंदर न्यूज़ बताया है, ये बदल खूब खूब अभिनंदन। आने वाले चुनाव के दौरान वार्ड सीमांकन और सीट आवंटन में बदलाव करने की मांग करता हुआ आवेदन पत्र जिलाधीश कार्यालय और वडोदरा महानगर पालिका को दिया गया। आने वाले चुनावों में वार्ड सीमांकन, बैठकों का आवंटन, महिलाओं को 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति बख्शीपंच की बैठकों के आवंटन में बदलाव की मांग नरेंद्र रावत, अभी रावत समेत सामंत सी परमार, दिनेश लिंबाचिया, अश्विन सोलंकी और नबीद राज पठान ने की है। इस मामले आज जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर ठोस कदम उठाए जाने की मांग की गई। जब से गुजरात स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुई है, उसके बाद गुजरात में हर इलेक्शन में वार्ड का डिलिमिटेशन हुआ है। सिर्फ गुजरात में, पूरे भारत देश में सिर्फ गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां पर मल्टी वार्ड सिस्टम है। दैट मीन्स एक वार्ड में एक से ज़्यादा कॉरपोरेटर हो, ऐसा सिर्फ गुजरात में है। इससे गैरलाभ ये होता है कि जो SC ST के रिजर्वेशंस है, महिला का आरक्षण है, उसका पर्पस लॉस्ट हो जाता है।
और जो आरक्षण रोटेशन में जाना चाहिए दूसरे वार्ड में वो जाता नहीं, और हर बार जो हम मैक्सिमम SC ST का या उनका कंसंट्रेशन होता है वहीं पर रिजर्वेशन लिमिट होके रह जाता है। और इनडायरेक्टली 25 साल से यहाँ पर बीजेपी का शासन है, तो बीजेपी अपने हिसाब से वार्ड के टुकड़े इस तरह से करती है कि जो दूसरी पार्टीज़ हो उसको इसका डिसएडवांटेज हो। और सेकंडली ये दूसरी पार्टीज़ को तभी पता चलता है इलेक्शन के 15-20 दिन पहले, बाकी लोग को ये हमेशा एडवांस में पता हो जाता है बीजेपी के लोगों को। इसकी वजह से अर्बन सीट्स में गुजरात में कांग्रेस बुरी तरह से लूज़ भी करती है। 2015 में हम इस सिस्टम के खिलाफ काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रेस करके हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के लिए इलेक्शन को स्टे भी किया था, और उसके बाद जो नगर पालिका का इलेक्शन था उसका रिज़ल्ट महानगर पालिका के साथ आना चाहिए, उसका जुरिडिक्शन भी दिया था। और साथ में ये भी कहा था कि जब इसकी सुनवाई होगी और जो फैसला आएगा वो 2015 का जो चुनाव है उस पर भी बाइंडिंग रहेगा। अनफॉर्चुनेटली उसकी सुनवाई अभी तक हुई नहीं है, और वो सुनवाई ख़त्म होने से पहले जूनागढ़ में फिर से डिलिमिटेशन हो गया। मल्टी वार्ड सिस्टम, 3 वार्ड के 3 काउंसिलर की जगह 1 वार्ड में 4 काउंसिलर अनाउंस किए। शहर बढ़ा फिर भी नंबर ऑफ वार्ड्स कम किए गए, और यही चीज़ बाकी सब शहरों में भी, सपोज बड़ौदा का भी नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर होने के बाद ऑफिशियली उसको वेबसाइट पे रखना चाहिए, वो वेबसाइट पे भी नहीं रखा। कहीं और से हमको इन्फॉर्मेशन मिली, हम ढूंढ के लेके आए, और आज हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया है कि ये डिलिमिटेशन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जब केस चालू है तो इट इज़ लाइक अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई जुरिडिक्शन ना दे या इस पे आपको आगे आदेश ना दे, आप डिलिमिटेशन ना करें। ऐसे भी 2011 का डिलिमिटेशन 2015 में 2011 के सेंसस के हिसाब से हो गया है। जानबूझ के कुछ एरिया रह गया ये कह के फिर डिलिमिटेशन करने का जो प्रोसेस स्टार्ट किया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अपने पावर्स का मिसयूज़ करके बीजेपी हर बार अपने फ़ायदे के लिए ये करवा रही है। तो आज हम यहाँ पर मेमोरेंडम देने आए हैं। हमने आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, शहर के इलेक्शन कमीशन को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को ये मेमोरेंडम दिया है कि आप ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस बंद करिए, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बिना इस बार के इलेक्शन में आप वार्ड बाउंड्रीज मत सेट करिए। વિશેષ છે કે ગવર્મેન્ટ તરફથી એવું કોઈ નોટિફિકેશન કે સીમાંકન કરવાનું હોય વડોદરા શહેરનું કે એવી વાત છે, કારણ કે એ જો મુદ્દાના આધારે જ રજૂઆત કરી રહ્યા છે। એમને જો પણ લેટર્સ આપ્યા છે એ બધા પત્રોનું અમે સંબંધિત વિભાગ પાસેથી તપાસ કરાવીશું। कारालीबाग में ज्यादा पैसे देने की लालच देकर व्यापारी से 8 लाख रुपए की लूट की गई। कारेलीबाग आर्य कन्या विद्यालय के सामने हीरावंती चैम्बर्स में जिग्नेश शाह की गिफ्ट की दुकान है। 25 जून को 3 शख्सों ने दुकान में आकर जिग्नेश नायक को 10 लाख की 2000 की नोट के बदले 11 लाख रुपयों की छोटी नोट देने का झांसा देकर 8 लाख रुपए लूट लिए। मुकेश बेलानी, मनीष सावलानी और जयेंद्र भदौरिया नामक इन तीनों शख्सों ने मिलकर मोडस ऑपरेंडी के तहत दुकानदार को खिलौने की नकली 2 लाख रुपए की नोट थमा दी। क्राइम ब्रांच ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला कारेलीबाग पुलिस थाने को सौंप दिया है। 30 लाख रुपया है हमारे पास, राजकारणियों का फंड है, और ये स्टार्टिंग में ये 30 लाख का करने का है। पहले आप 10 लाख रुपया दो, 500 की नोट है हमारे पास, हम 11 लाख देंगे और बाद में ये एक डील हो जाएगा। उसके बाद 19 लाख रुपया दे देंगे आपको, वो आप चेंज करके फिर 2000 की नोट वो देना, और इसमें टोटल आपको 10% कमीशन मिलेगा। और ये कमीशन में मैं, अल्पेश और कमलेश भाई 3 लोग उसमें इन्वॉल्व थे। ये वो लोग ही लेके आए थे इनको, और फिर मंडे चेक कर, संडे को मुझे दिखाया गया पैसा जगदीश परसाण पे, और फिर देखा मैंने, चेक नहीं किया था, वो थैले में दिखाया कि ये पैसा है, और फिर बोला कि मंडे से आप स्टार्ट हो जाओ काम करने के लिए। फिर मंडे में पैसों की व्यवस्था में था, 6 लाख हुआ था, और ये चेक करने आया। मैंने बोला 6 लाख है, आप ले लो और मुझे 6 लाख सामने दे दो। तो उसने मना किया कि नहीं, 10 लाख आप इकट्ठा करो तो 11 दे देंगे, बाकी का 19 दे देंगे, वो आप करते रहना। फिर मंगलवार को आए चेक करने के लिए कितना हुआ है। मैंने बोला 8 लाख हुआ और 2 लाख की व्यवस्था हो रही है। और फिर वो बोले ठीक है, तो बाहर से वो बैग लेके आया और फिर रखा ऑफिस में, मेरा टेबल है उधर,
और 8 लाख मेरा लिया 2000 का 4 बंडल। वो बैग उसने थैली थी उसमें रखवाया। बोला ठीक है ये आप पैसा गिनो और 2 लाख आता है तब तक मैं बाहर खड़ा हूँ। और वो बाहर निकलने मीन्स दरवाजे तक पहुँचा होगा तब अल्पेश भाई बैठे थे, उन्होंने वो चेक किया पैसा के चलो गिन लेते हैं पैसा। मैं वो मशीन भी ले आया था पैसा गिनने का। तो फिर उसने बंडल निकाला और बोला कि ये तो फ्रॉड हो गया। और वो फिर क्या है कि वो बाहर ही था, एक्टिवा पे बाहर कोई खड़ा था। अभी ये अल्पेश फ्रॉड बोला ना तो कमलेश ने कुछ नहीं किया और वो एक्टिवा तक वो बैठे ना। बाकी जनरली क्या है कि फ्रॉड है तो कोई भी आदमी है पता चलता है तो वो दौड़ता ही है पीछे पकड़ने के लिए। ये कमलेश नहीं गया और वो क्या है कि क्या करूं क्या नहीं ऐसा उसने एक्टिंग किया और वो लेके निकल गया पैसा। तब तक ये कुछ बोला नहीं, ऐसा बोला कि ये ये जगह ज़्यादा रोकता है, राजकारणियों का फंड है कि 500 की नोट है तो आप 2000 की नोट दो तो ऐसा वो जगह कम रोके कि बहुत फंड है उन लोगों का, ऐसा मुझे बोला। आपके क्या लालच क्या थी आपकी? 10% कमीशन की हाँ वजह से। तो आपके कितने पैसे लिए थे उन लोग? ये पहले 10 लाख का डीलिंग करने वाले थे कि 10 लाख आप दो 11 लाख हम देंगे। कितने महीने में देंगे ऐसा कुछ? नहीं वो तुरंत ही था, उन्होंने पैसा बताया था, अभी मैंने चेक नहीं किया था। तो वो बोला कि पैसा रेडी है आप काम स्टार्ट करो। क्या काम क्या करना है? वही 2000 की नोट की व्यवस्था। लक्ष्मीपुरा के तालाब को विकसित करने की मांग को लेकर स्थानीय निवासी वार्ड नंबर 10 के कार्यालय पहुंचे। शहर के लक्ष्मीपुरा इलाके में श्मशान निकट एक तालाब बना हुआ है जिस पर रेलिंग नहीं होने की वजह से तालाब में गिर जाने का डर लोगों को सताता है। इस तालाब के आसपास गंदगी की भी भरमार है। इन दिनों स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत शहर के तालाबों के सौंदर्यीकरण की कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में यहाँ के निवासियों ने वार्ड कार्यालय में वडोदरा शहर जिला कांग्रेस समिति की अगुवाई में तालाब के विकास की मांग की है। વોર્ડ નંબર 9 અને 8ના તમામ કાર્યકરો સાથે ગઈકાલે અમે લક્ષ્મીપુરા ગામની બાજુમાં એક તળાવ છે ત્યાં તપાસ કરવા ગયા હતા અને ત્યાંના રહીશોની ખૂબ રજૂઆત હતી। તો રજૂઆતને જોતાં એવું લાગે છે કે ત્યાં તળાવની ચોફેરે ખૂબ ગંદકી છે અને ગંદકી એટલી બધી છે કે ત્યાં માણસો રહી ન શકે એવી પરિસ્થિતિ છે। અને બીજી એક વસ્તુ છે કે 2 દિવસ પહેલાં 2 છોકરીઓ ત્યાંથી પસાર થતી હતી એક્ટિવા ઉપર અને એ એક્ટિવા પરથી સ્લીપ ખાતા એ લોકોનો ખૂબ બચાવ થયો છે। તો એ તાત્કાલિક રેલિંગ લાગે એના માટે અમે વોર્ડ નંબર 10માં વોર્ડ નંબર 8ના અને 9ના તમામ કાર્યકર્તાઓ આજે એક આવેદનપત્ર અપાયા છે। તો અમારી એક રજૂઆત એવી છે કે આ તાત્કાલિક જો થાય તો ભવિષ્યમાં આવું ના થાય અને ભવિષ્યમાં ઘણા લોકોનો બચાવ થાય અને ત્યાંથી ગંદકી પણ દૂર થવી જોઈએ એ પણ સાથે સાથે અમારી રજૂઆત છે। ત્યાં મોર્નિંગ વોકર્સ પણ આવે છે, મોર્નિંગ વોકર્સના પણ ત્યાં આગળ પડી જવાના પણ ડર રહે છે જેથી કારણે અને બાજુમાં એક કાંસ પણ ત્યાંથી પસાર થાય છે। કાંસ અને તળાવની વચમાં એક થોડીક જ ગેપ છે જેને કારણે વારંવાર આ સ્લીપ થવાના બનાવો બનતા રહે છે। તો હવે અમારી રજૂઆત એ છે કે અહીંયા જેમ બને એમ આ લોકો અહીંયાથી અમને ત્યાં આગળ રેલિંગ કરે, ફેન્સિંગ કરે અથવા તો ત્યાં આગળ કોઈક એવું અત્યારે તાત્કાલિક ધોરણે એ કરે કે જેથી કરીને કોઈ અનિચ્છિત બનાવ ના બને એના માટેની કોઈક કાર્યવાહી કરીને વ્યવસ્થિત કરી આપે તો સારું છે। એના માટેની અમે રજૂઆત કરી છે। અને બીજું એ કહેવાનું છે કે દરેકે દરેક વડોદરાના દરેક તળાવોની વેરિફિકેશન થઈ ગયું છે કે નવું સારું એ પણ થઈ ગયું છે, રિનોવેશન પણ થઈ ગયા છે, જ્યારે આ લક્ષ્મીપુરાનું એક તળાવ એવું છે કે જેને ધ્યાનમાં જ લેવામાં નથી આવ્યું। सोमा तालाब इलाके में डिवाइडर पर पौधे लगाने की कार्यवाही अधूरी छोड़ दी गई है। वडोदरा शहर को क्लीन वडोदरा, ग्रीन वडोदरा बनाने के भागरूप विभिन्न इलाकों की सड़कों के बीच बने डिवाइडर पर पौधे लगाकर शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, साथ ही पर्यावरण भी संजोया जा रहा है। लेकिन सोमा तालाब से लेकर यमुना मील तक के डिवाइडर पर पिछले 20 दिनों से गड्ढे खोदकर पौधे लगाने का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश भी हो रही है, ऐसे में अगर पौधे लगा दिया जाए तो वो जल्द ही पनप सकते हैं, लेकिन किस वजह से वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस इलाके में पौधे लगाने का काम रोक दिया गया है, उस पर सवालिया निशान है। પ્રતાપનગરથી કપૂરોને જોડતો માર્ગ છે અને આગળ જતા આ માર્ગ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પહોંચે છે। આ માર્ગ પરથી કાયમ લાખો માણસોની અવર જવર છે અને આ માર્ગ
કપૂરેથી પ્રતાપનગરની વચ્ચે આ માર્ગ જે છે તે માર્ગ પર ડિવાઈડર બનાવેલું છે અને એ ડિવાઈડર પર વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા છેલ્લા લગભગ 20 દિવસથી ખાડા ખોદવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ફૂલ છોડ રોપવામાં આવ્યા નથી અને આ ખાડામાં અવારનવાર 1-2 વાર વરસાદ પડવાથી ખાડા ભરાઈ ગયા છે, કેટલાક ખાડા પૂરાઈ ગયા છે. તો અમારું મહાનગર સેવા સદનના સત્તાધિકારીઓને અને કોન્ટ્રાક્ટરને એક ધ્યાન દોરવા માટેનો અમે આ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે આ ડિવાઈડર પર જે ફૂલછોડ છે, ફૂલછોડનું વૃક્ષારોપણ કરવાનું છે તે વહેલીથી વહેલી તકે કરી દે. બીજું અમારે કહેવું એવું છે કે આ રોડની આજુબાજુ જે પાર્કિંગ સ્પેસ છે એની પર પણ આડેધડ દબાણો થયેલા છે, પાર્કિંગો થયેલા છે, લોકોની બગડેલી ગાડીઓ પડી છે અને એ બધી ગાડીઓ પડી છે. તો મહાનગર સેવા સદન દ્વારા આ પાર્કિંગ સ્પેસ પણ ખુલ્લો કરી આપે અને સિસ્ટમથી પાર્કિંગ થાય એવા પણ પગલાં ભરી આપે એવી અમારી વિનંતી છે. शहर के पुलिस भवन में राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी की किताबों को पढ़ने का मौका शहरवासियों को दिया गया है. बड़ोदरा के पुलिस भवन में एक अनोखे साहित्य कॉर्नर की शुरुआत की गई है. मेघाणी साहित्य कॉर्नर का आज पुलिस भवन में लोकार्पण किया गया, जहां राष्ट्रीय शायर ऐसे प्रसिद्ध कवि और लेखक झवेरचंद मेघाणी की 75 जितनी किताबें रखी है, जो पुलिस भवन आने जाने वाले लोग निःशुल्क पढ़ सकते हैं. इस मौके पर पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, लोक कलाकार अभय सिंह राठौड़ और झवेरचंद मेघाणी स्मृति संस्थान अहमदाबाद के पिनाकी मेघाणी उपस्थित रहे. आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस में वेटिंग रूम में जहाँ पे मुलाकाती लोग मिलने आते हैं वहाँ पे मेघाणी साहित्य कॉर्नर जो एक लाइब्रेरी है जिसमें 75 जितनी मेघाणी साहब की बुक्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो उनके जितने भी संग्रहित गाथाएं हैं वो यहाँ पे रखी गई इस बुक्स के माध्यम से. तो 75 कुछ बुक्स हैं वो आज उसका यहाँ पे हमारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, स्टाफ और पिनाकी भाई मेघाणी, अभय सिंह भाई राठौर, इन सब के प्रेजेंस में जो है उसका उद्घाटन किया गया. और जो विजिटर्स आते हैं उनको एक अच्छा, एक उम्दा जो कि उसका जो अपना साहित्य गुजराती उसको एक पढ़ने को मिले और अपने देश प्रेमी और अपने गुजरात के साहित्य को जानने को मिले, और इस आशय से यहाँ उद्घाटन किया गया. और उसके साथ साथ यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर में, महिला पुलिस स्टेशन में और अपने मांडवी के पास जूनी लाइब्रेरी है, वहाँ पे भी एक मेघाणी साहित्य कॉर्नर रखा गया है, जिससे कि लोगों को खूब लाभ हो, लोग आए और अपनी गुजरात की संस्कृति और गुजरात का जो गौरव है उसको जाने जाए. મહાત્મા ગાંધીજીએ જેમને રાષ્ટ્રીય શાયરનું બિરુદ આપ્યું એવા રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીના જે પુસ્તકો છે એનો જ્યાં શક્ય બને ત્યાં એમના માટેના સાહિત્ય કોર્નર મૂકવા માટેની એક અમે અભિયાન ચલાવ્યું છે. અહીંયા બરોડાના કમિશનર સાહેબ ગેહલોત સાહેબે અનેક વખત આ માટે ખૂબ મદદ કરી અને જે જગ્યાએ યોગ્ય લાગે ત્યાં વેઇટિંગ રૂમમાં અને બીજે ક્યાંય પણ આ સાહિત્ય કોર્નર મૂકવા માટે સાહેબે ખૂબ જ સ્પોન્સરશિપ આપી અને આ કામ કર્યું છે. અને એટલા માટે કે મેઘાણીજીનો જન્મ છે ચોટીલાના પોલીસ લાઇનમાં થયેલો અને પોલીસ બેડાના લોકો છે એ મેઘાણીજીને એટલા માટે એમનું સ્મરણ કરે છે કે એમના પિતાજી એ વખતે ફોજદાર હતા. મેઘાણીએ ગામડે ગામડે ફરી લોક સંસ્કૃતિની વાતો કરી હોય, પાળીએ પાળીએ પહોંચી અને એ શૂરવીરતાની વાતોને જેમણે લખી હોય એવા એક મેઘાવી પુરુષ અને એના જીવન વિશે, એમના કવન વિશે લોકોમાં જાણકારી થાય એટલા માટે આ જ્યારે અભિયાન ચલાવ્યું છે ત્યારે લોકો સુધી આ પહોંચે અને મેઘાણીજીની જે રાષ્ટ્રભાવના હતી એનો વિકાસ થાય અને લોકોમાં એના વિચારો એ પ્રતિપાદિત થાય એવા ઉદ્દેશથી અહીંયા આજે આ મૂકવામાં આવ્યું છે. મેઘાણીજીને યાદ કરીએ એટલે આપણને કસુંબીનો રંગ યાદ આવ્યા વગર રહે નહીં. જનની નાહૈયામાં પોઢણતા પોઢણતા અમે પીધો કસુંબીનો રંગ, ઈમાના ધોળા ધાવણ કેરી ધારાએ ધારાએ પામ્યો કસુંબીનો રંગ, હોરાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. કસુંબલ કંઠના આ ગાયકને જ્યાં ગામડે ગામડે એ પહોંચેલા છે, પણ એમના પૌત્ર પિનાકીભાઈ મેઘાણી આ એક જહેમત ઉઠાવી અને સરસ કામ કરી રહ્યા છે, એટલે એમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. एमएस यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी का फर्स्ट ईयर
सोमवार से शुरू होने जा रहा है। एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में फर्स्ट ईयर की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है। इस वर्ष कॉमर्स फैकल्टी में बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रवेश लिया है। ऐसे में सोमवार से फर्स्ट ईयर के छात्रों से कॉमर्स फैकल्टी की रंगत में बढ़ोतरी होगी। हमने FY BCom का पहला राउंड का प्रक्रिया पूरा कर दिया है। उसके बाद हम क्लासेस शुरू करेंगे सोमवार से 8 तारीख को। 3 अलग अलग यूनिट में ये क्लासेस हम कंडक्ट करने वाले हैं और हर रोज़ 3 घंटे का लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर। कुल मिला के ये 3 यूनिट बड़ौदा का जो है गर्ल्स कॉलेज, मेन बिल्डिंग और हायर पेमेंट यूनिट, तकरीबन हमने 6000 स्टूडेंट को एडमिशन दिया है और ये 6000 का बैठक व्यवस्था हमने अच्छी तरह कर दिया है। टाइम टेबल भी लग गया है। अपना वेबसाइट जो है उसमें सबको अपना अपना जानकारी मिल जाएगा। उनका सीट नंबर क्या है, PRN नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है और रोल नंबर के हिसाब से हर एक बिल्डिंग में क्लासेस कंडक्ट किया जाएगा। तो मेरा स्टूडेंट का ये विनंती है कि आने से पहले टाइम टेबल और उनका खुद का सीट नंबर जो है वो देख लीजिए ताकि उनको अपना रूम पता चले और क्लासेस अटेंड करने का कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह पादरा में भी लगभग जो 1200 स्टूडेंट को हमने एडमिट किया उनका भी क्लासेस होगा, लेकिन उनका जो टाइमिंग है सुबह का होगा और जो यूनिट अपना मेन बिल्डिंग, गर्ल्स कॉलेज और हायर पेमेंट, उनका क्लासेस 3:30 बजे दोपहर का होगा। तो मेरा सबका वेलकम है। मैं आश्वासन देता हूं कि बढ़िया से बढ़िया हम फैसिलिटी देंगे। पढ़ाई में भी हम उनको जितना मत चाहिए मत करेंगे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए भी हम उनका सुविधा पूरा करेंगे। देखिए, हर साल हम मई महीना में जब वैकेशन पूरा होता है उस टाइम हम प्रक्रिया शुरू करते हैं टीचर का रिक्रूटमेंट करने के लिए। ये प्रक्रिया पूरा हो गया। लगभग जितने टीचर फर्स्ट ईयर पढ़ाने के लिए चाहिए सब एक आध डिपार्टमेंट में स्टूडेंट का शॉर्टेज है, लेकिन जो परमानेंट टीचर है वो एक्स्ट्रा लेक्चर लेके ये भी भरपाई पूरा कर देंगे। वासना की ब्राइट स्कूल में छात्र सलाहकार समिति का पद ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। वासना की ब्राइट CBSE और GSEB स्कूल में छात्र सलाहकार समिति का पद ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। छात्र सलाहकार समिति स्कूल को सुचारू रूप से चलाने में प्रबंधन को सहयोग करती है। स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में NCC के ग्रुप कैप्टन हेमंत चौहान और स्कूल के जॉइंट मैनेजिंग ट्रस्टी सौमिल शाह की उपस्थिति रही। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में झील पटेल, मुस्कान सिंह, जनरल सेक्रेटरी के रूप में कबीर ब्रह्मभट्ट और अन्य छात्रों ने हाउस कैप्टन के रूप में अपना पद ग्रहण किया। When I was in school, during my time, there used to be only house captains. At times, you as a person feel मुझे भी इसका हिस्सा होना चाहिए. I should be a part of it. Though it troubles you for short duration, but remember, if there is a leadership in you, it will definitely come up. Nobody can stop you. Schools give you a big horizon to come up onto this stage, shoulder the responsibilities, guide people. But my advice to people who got selected, only leading people is not enough. You need to lead them by setting an example. You need to help them, walk along with them. Then only you have good followers. And remember, good followers further create good leaders. So keep the motivation in you high. And if you have flexibility in your mind, if dynamism is there in your body, nobody can stop you. In your life to come, you will be facing a lot of hardships, mental, physical, stress. You keep hearing about it, isn't it? So, this opportunity where you are able to get a chance to look after your school students, your subordinates, your classmates, and help them out, the selected team must do that. A very good thing, because you become a link between the teachers and students. Some of the students may not be able to come up and speak, and they speak to their class teachers, class prefects, monitors, VTs, and further the problems can be highlighted to the school authorities. A very nice thing. You must continue with this, and I again wish all the best to the selected team members. I am sure you are going to hold the flag high of the Bright School. All the best.
God bless you. वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की महिला विंग ने कैंसर मरीजों के हित में HCG कैंसर हॉस्पिटल में वृक्षारोपण किया। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की महिला विंग द्वारा HCG कैंसर हॉस्पिटल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अस्पताल में आने वाले कैंसर पीड़ित लोगों को अच्छे हरे भरे माहौल में रहकर बीमारी से निजात पाने में मदद मिले, इस आशय के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद रंजनबेन भट्ट और गुजराती फिल्म रेवा के अभिनेता चेतन धनानी, VYO की महिला अध्यक्ष हिमाबेन चौहान समेत के सदस्यों की उपस्थिति रही। आज एक तो अमे लोगोए वृक्षारोपणનો કાર્યક્રમ વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશનના બેનર હેઠળ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટની સાથે આપણા મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ છે એમની છત્રછાયા એમની આ સહકારથી અમે આજે આ પ્રોગ્રામ કર્યો છે। અમારી સાથે ગુજરાતી પિક્ચર રેવા જે બહુ સક્સેસ થયું હતું એના મેઇન લીડિંગ હીરો ચેતનભાઈ ધાનાની સાથે જોઈન થયા છે અને અમારી મેઇન કમિટીની બહેનો જે છે અમે 12 બહેનો એ અને અહીંયા બાજુમાં પ્રમુખ દર્શન સોસાયટી છે એના પણ સભ્યો અમારી સાથે આવી અને અમને મદદ કરી છે અને આજે અમે વૃક્ષારોપણ કર્યું છે। HCG કેન્સર હોસ્પિટલની તમામ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટીમ ડૉક્ટર બીનુ અને એ બધાએ અમને બહુ જ સપોર્ટ કર્યો છે અને અમે HCG કેન્સર હોસ્પિટલની સામે વૃક્ષારોપણ કરવાની પાછળનું અમારી તમામ બહેનોનો હેતુ એ હતો। બોરસલી, સેવન અને બીલીમાં શંકરનો વાસ છે, સેવનમાં લક્ષ્મીનારાયણનો વાસ છે અને બોરસલીમાં રાધાકૃષ્ણનો વાસ છે। અહીંયા જેટલા બી પેશન્ટો આવે અને એ પેશન્ટોને સારા વાઇબ્સ મળે અને વાઇબ્સની સાથે એ લોકો હોસ્પિટલમાં ટ્રીટમેન્ટ લેવા જાય અને એ ટ્રીટમેન્ટ લઈને 10 પેશન્ટમાંથી 2 પેશન્ટ બી સારી જિંદગી મેળવીને પાછી આવે એવી અમારી આશા સાથે અમે આજે વૃક્ષારોપણ કર્યું છે। शहर की कला दर्शन डांस एकेडमी द्वारा डांस वर्कशॉप का आयोजन ईवा मॉल में किया गया। शहर की कला दर्शन डांस एकेडमी द्वारा ईवा मॉल में बिगेस्ट डांस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें डांस इंडिया डांस सीजन 5 और DID सुपर मॉम्स से चमके डांसर कार्तिक राजा ने उपस्थित रहकर सभी को डांस के गुण सिखाए। KD डांस एकेडमी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 300 से अधिक बच्चों ने शरीक होकर डांस के अलग अलग रूप का प्रशिक्षण हासिल किया। ये ईवा मॉल में हम लोगों ने वर्कशॉप रखा हुआ है डांस का। कार्तिक राजा जो सेलिब्रिटी है मुंबई से आ रहे हैं, हम लोगों ने कोशिश की है कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे आए और कुछ नया सीखे। जो 250 से बच्चे आसपास कुछ आ रहे हैं और काफ़ी लोगों ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से हम लोगों को रिस्पांस दिया है, तो थैंक यू सो मच सभी लोगों के लिए हम लोग बोलना चाह रहे हैं। उन बच्चों को उनके साथ पूरा सर्टिफिकेट्स मिलेगा, उन लोगों को अपना पिक मिलेगा, उनके साथ साथ उन लोगों के पास कुछ नया सीखने मिलेगा और काफ़ी अपना खुद का हुनर के साथ साथ उनके पास नई एक्टिविटी के, जैसे कि वो अर्बन स्टाइल कर रहे हैं नया पैटर्न, तो वो उनके साथ सीखने मिलेगा उनका नया। अगर हम कार्तिक राज की बात करें तो उनका डांस परफॉर्मेंस क्या करियर है, किस तरह? अरे बाप रे, उनका करियर बोलेगे तो सारी सेलिब्रिटी उनके पास सीखती है। जैसे कि सारी मुंबई की जैसे दिग्गज कोरियोग्राफर है वो उनके पास सीखने के लिए आतुर रहते हैं और उनका काफ़ी फास्ट, हार्ड एंड फास्ट बोलते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा सा यूटिलाइज़ किया हुआ उन्होंने अपना नया स्टाइल। ये काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि सिर्फ बड़ौदा ही नहीं, गुजरात में जहाँ भी मैं आता हूँ मुझे काफ़ी अच्छे टैलेंट्स मिलते हैं और अच्छे टैलेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। सो बड़ौदा से भी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और अब तक का जितना भी मैंने टाइम स्पेंड किया हूँ बड़ौदा में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा होटल है। सो इट्स लाइक अब तक बहुत परफेक्ट है। सो आई एम लुकिंग अप टू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वडोदरा में पहली बार है? हाँ, दिस माई फर्स्ट टाइम इन बड़ौदा। और जैसे डांस की बात करें तो वडोदरा में डी है या प्रिंस है, इस तरह के डांसर्स यहाँ से वडोदरा से निकले, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ के बच्चों से? देखो ऑलरेडी ये सारे बड़े बड़े नाम है, प्रिंस, उसके बाद सुमित पेंडम, और उसके बाद संतोष कंसारा करके एक डांसर है, उसके बाद धर्मेश सर भी है, बहुत बड़े ही नाम है। तो इट्स लाइक वो लोग ने एक लेगेसी सेट कर दिया है। नाउ इट्स देयर टर्न कि वो लेगेसी को और ऊपर लेके जाए। सो ये सभी इतने बड़े बड़े नाम है तो ऑब्वियसली सारे को एक्सपेक्टेशन तो है ही कि बड़ौदा से बहुत ज़्यादा अच्छे टैलेंट्स निकलेंगे। सो इट्स लाइक और मेरे साइड से बहुत एक्सपेक्टेशंस है एंड येस, और मेरी तरफ से जितना भी हेल्प भी होगा I'll surely do it for them। पावी जेतपुर के गांव में 10 फीट लंबा अजगर देखे जाने से गांव वालों में दहशत का माहौल है। पावी जेतपुर के कलारानी गांव में 10 फीट लंबा अजगर घर के भीतर देखे जाने से हड़कंप मच गया। गांव के निवासी अनिल पारिया के घर में इतना बड़ा अजगर देखे जाने से लोग हक्के बक्के रह गए।
मामले की जानकारी पाकर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़कर सलामत जगह पर छोड़ दिया, जिससे घर मालिक के साथ साथ स्थानीयों ने भी राहत की सांस ली। सलाटवाड़ा की एमसी हाई स्कूल के छात्रों को सामाजिक संगठन द्वारा यूनिफॉर्म्स भेंट दी गई। सलाटवाड़ा की महारानी चिमनाबाई हाई स्कूल में श्री कुलस्वामिनी शिरकई देवी मंडल की ओर से यूनिफॉर्म वितरण किया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर नारायण माधु और श्री कुलस्वामिनी शिरकई देवी मंडल के अध्यक्ष किशोर चंद्रा, सेक्रेटरी चंद्रकांत शिरके की मौजूदगी रही। महारानी चिमनाबाई हाई स्कूल में शिरकई देवी ट्रस्ट द्वारा यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम राखेलो हतो। ते कार्यक्रम में 350 विद्यार्थीओं ने 2 जोड़ यूनिफॉर्म वितरण करेल छे अने आ कार्यक्रम खूब सरस रह्यो छे अने लगभग 350 विद्यार्थीओं ने आ कार्यक्रमनो लाभ मळशे। वडोदरा शहर में मराठी मीडियमनी शाळाओ बहु ओછી रही है, ત્યારે આવી શાળાઓને માતૃભાષામાં શિક્ષણ આપે છે અને ઉત્તેજન આપવાની જરૂર છે। આ કાર્યક્રમમાં મને ઉપસ્થિત રહેવા મળ્યું એ બદલ હું મારી જાતને ધન્યતા અનુભવું છું। છેલ્લા 21 વર્ષથી વડોદરા જિલ્લાના પિલોલ ગામમાં કામ કરીએ છીએ। ત્યાં પિલોલ ગામમાં આજુબાજુના 5-6 સ્કૂલો છે। એ બધી સ્કૂલોમાં ધોરણ 1 થી 7 સુધી 8 સુધી અમે બધા શૈક્ષણિક સાધનો પૂરા પાડીએ છીએ। સાથે સાથે એમને દર વર્ષે 2 જોડ યુનિફોર્મ અને અંડર છત્ર પણ ચલાવીએ છીએ। આ મહિનામાં 2 વખત વિદ્યાર્થીઓને ત્યાં જમવાની વ્યવસ્થા રાખેલી છે। મેડિકલ કેમ્પને આયોજિત બધા વિદ્યાર્થીઓને મેડિકલ તપાસ ત્યાં કરવામાં આવે છે। અને એ જ પ્રમાણે અમારા ટ્રસ્ટીગણ છે એ બહુ મહેનત કરીને વડોદરા શહેરની અત્યારે આજે પણ એમસીઆઈ સ્કૂલ જે મરાઠી સ્કૂલ છે, આજે વખતો વખત અત્યારે તમે જોશો તો મરાઠી સ્કૂલની સંખ્યા ઓછી થતી જાય છે અને એને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે શ્રીકઈ દેવી સેવા મંડળ તરફથી આ એમસીઆઈ સ્કૂલને પસંદ કરવામાં આવેલી છે અને અહીંના વિદ્યાર્થીઓને પણ દરેકને 2 જોડ કપડાં આપવાના અમારા ટ્રસ્ટી મંડળ તરફથી બહુ મોટું કામ હાથ ધરવામાં આવેલું છે। તે આજે પૂરું થાય છે અને આજે બધાને 2 જોડ કપડાં આપીએ છીએ। વડોદરા શહેર વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ શૈક્ષણિક સાધનો અમે આપીએ, શૈક્ષણિક સાહિત્ય અમે પૂરું પાડીએ છીએ। એમાં પણ લગભગ આખા વર્ષમાં 800 થી 900 વિદ્યાર્થીઓને અમે શૈક્ષણિક સાધનો પૂરા પાડીએ છીએ। આ સિવાય પણ અમારી ઘણી પ્રવૃત્તિઓ ત્યાં ચાલે છે। દર રવિવારે અમારે ત્યાં એ થાય છે। શિબિરો પણ યોજાય છે, વિદ્યાર્થીઓ માટે શૈક્ષણિક શિબિરો યોજવામાં આવે છે। શિબિરોમાં વડોદરા શહેરના નામાંકિત ટીચરો, નામાંકિત વ્યક્તિઓ, પ્રેસના તમારા સંપાદકો એમને બોલાવીને એમના વિષયો પર ગ્રામ્ય જનતા એમાંથી અમે એમને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ। शहर के 8 उभरते कलाकारों की खूबसूरत चित्रों की प्रदर्शनी आयरिश गैलरी में आयोजित की गई है। शहर के चकली सर्कल निकट आर्ट गैलरी में आर्ट एग्जीबिशन आयोजित हुआ है। वैशाली प्रजापति द्वारा आयोजित इस एग्जीबिशन में 8 उभरते चित्रकारों ने अपने विभिन्न चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है। विभिन्न थीम पर बनाए गए विभिन्न चित्र 7 जुलाई तक आइरिस गैलरी में देखे जा सकते हैं। ये आयरिश गैलरी है चकली सर्कल के पास और यहाँ हम 8 आर्ट मेरे स्टूडेंट हैं 8 और मैं सब मतलब डिफरेंट मीडिया में हमने पेंटिंग्स बनाए हैं। एक्रिलिक है, पेंसिल, ऑयल पेंट और म्यूरल, एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे डिफरेंट मीडिया में हमने पेंटिंग्स बनाए हैं। मैं चाहती थी कि मेरे स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म मिले और लोगों को उनकी कला पसंद आए, तो हमने ये अरेंज किया है। थीम वाइज हमने मतलब भगवान है, फिर स्टिल लाइफ है, फिर म्यूरल है, फिर पेंसिल है, वो सब में डिफरेंट स्केच है, फिर लैंडस्केप है, ऐसे अलग अलग चीज़ बना के फिर हमने डिस्प्ले रखा है। 2 डेज़ है, 6 और 7।
इस एग्जीबिशंस की खासियत यही है कि यहाँ पे जो भी है वो सिर्फ पेंटिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ करते रहते। कोई स्टूडेंट्स है, कोई जॉब करता है तो कोई कुछ भी करता है मतलब कि, और उसके साथ उन्होंने अपने काम के साथ यह पेंटिंग एग्जीबिशन का प्लान किया है। और इसमें सबसे खासियत है कि यहाँ पे सबकी वैराइटीज़ है, डिफरेंट पेंटिंग्स है, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग मिलेगी। यहाँ पे कोई एक मीडिया नहीं है या फिर एक ही माध्यम नहीं है जिसको आप देख सकेंगे। वैराइटीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि म्यूरल है, वाटर पेंटिंग है, ऑयल पेस्टल है, या एक्रेलिक है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट है, और स्टिल लाइफ है। हर एक टाइप का पेंटिंग हमने किया है। स्थानीयों की आपत्ति के बाद सोनियानगर की झुग्गियों को वीएमसी के अतिक्रमण विभाग द्वारा हटा दिया गया। वडोदरा महानगर पालिका की अतिक्रमण शाखा द्वारा संगम 4 रास्ता से लेकर माणिक पार्क 4 रास्ता तक के अतिक्रमण हटाए गए। यहां सोनियानगर के लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था और गंदगी फैलाई जा रही थी, जिस पर स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की थी, जिसके चलते आज कारेलीबाग पुलिस के बंदोबस्त के साथ अतिक्रमण हटा दिए गए। ઝૂંપડા તોડવાના નથી અને હંગામી 7.5 મીટરના રોડ પર જે દબાણ કર્યા, હંગામી દબાણ સામાન મૂક્યો છે એ હટાવવાની કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે અને 4 ટક જેટલો સામાન જપ્ત કરેલો છે। ઝૂંપડા તોડવાનો પ્રશ્ન અત્યારે નથી, અત્યારે તો હંગામી દબાણ જે કર્યા છે એમણે સામાન મૂક્યો છે, રોડ લાઈન ખુલ્લી કરી છે, 7.5 મીટરની રોડ લાઈન છે ખુલ્લી કરી છે। વહીવટી વોર્ડ નંબર 8માં સમાવિષ્ટ વિસ્તાર સંગમ 4 રસ્તાથી માણેક પાર્ક 4 રસ્તાની વચ્ચે સોનિયાનગર ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તાર છે, ત્યાંથી 7.5 મીટરનો રોડ લાઇન રસ્તો નીકળે છે। એ રોડ લાઇન રસ્તા પર હંગામી દબાણો કરવાથી રોડ પર ગંદકી અને બ્લોકેજ કરેલો તે રોડ ખુલ્લો કરવામાં આવેલ છે। 4 ટ્રક જેટલો ભરીને સામાન જમા લીધો છે, બંગારનો સામાન, દરવાજા, કબાટ, લારી, गला वगैरह वगैरह। राजपीपला में भाजपा के सदस्यता अभियान का आगाज किया गया। राजपीपला के सरदार टाउन हॉल में प्रभारी मंत्री बच्चू खाबड़ की उपस्थिति में भाजपा के संगठन पर्व अंतर्गत सदस्यता नामांकन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वीएमसी के स्थायी समिति चेयरमैन सतीश पटेल, नर्मदा जिला भाजपा अध्यक्ष घनश्याम देसाई की उपस्थिति रही। आज समग्र देशनी अंदर भारतीय जनता पार्टी सभ्य नोंधणीने एक झुंबेशना रूपे हमणां ज मारा देशना वडाप्रधान श्रीमान नरेन्द्रभाई मोदीना नेतृत्व वाराणसीथी एनो शुभारंभ करवामां आव्यो छे। पूरा देशनी अंदर देशना तमाम जिल्लाओनी अंदर आ सभ्य नोंधणीनो शुभारंभ आज थयो छे। एना भागरूपे आज नर्मदा जिल्लाना राजपीपला खाते मारे आववानुं थयुं। ए प्रसंगे अमारा प्रभारी सतीशजी, पार्टीना प्रमुखश्री, महामंत्रीश्री, संगठनना साथी मित्रों, चूंटायेला अने संगठननी आखी टीमना तमाम तालुकाना खूब मोटी संख्यानी अंदर संगठन में काम करता कार्यकर्ताओं आज एमना हाथे अमे आ शुभारंभ कर्यो छे। आजथी 15મી ऑगस्ट सुधी तमाम तालुकाओनी अंदर बूथ सुधी फळिया सुधी जे सभ्यो बन्या नथी एने नवेसरथी सभ्य बनावी, प्राथमिक सभ्य अने सक्रिय सभ्य बनावीने जे रीते भारतीय जनता पार्टी पूरा विश्वनी अंदर 11 करोड़ सभ्यों पार्टी है एने पण 20 થી 25% વધારો કરીને આવનારા દિવસોની અંદર ફરીવાર એ ઊંચાઈ પર ભારતીય જનતા પાર્ટી પહોંચે અને અમારો એક એક કાર્યકર્તા ઘર સુધી સંપર્ક કરીને સંગઠનને એક પરિવાર માટે ભારતીય જનતા સાથે બધા કાર્યકર્તા જોડાય એના માટેના આજે અભિયાનની અમે શુભારંભ કર્યો છે। મને ભરોસો છે આ જિલ્લાના મારા સંગઠનના સૌ કાર્યકર મિત્રો એને સાથે મળીને અમારા લક્ષ્યાંક સુધી પરિવાર સુધી પહોંચીને ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિકાસની દિશાઓની અંદર અને સંગઠનની દિશાની અંદર ખૂબ આગળ વધારે। एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों द्वारा हॉस्टल में सीट्स बढ़ाने की मांग की गई। एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज में छात्रों की संख्या बड़ी होने के चलते हॉस्टल में भी सीटें बढ़ाने की मांग छात्र संगठनों द्वारा की जा रही है। इसी मुद्दे आयशा और एनएसयूआई ग्रुप ने एमएस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की चीफ वार्डन को आवेदन पत्र दिया। हम हमारा हक मांगते हैं।
पास जैसे हॉस्टल के जो एडमिशन है वो लगातार बढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी की जो कैपेसिटी होनी चाहिए जो हॉस्टल की वो बहुत कम है। और आज AISA और NSUI ने मिल के आंदोलन किया है, आवेदन पत्र यहाँ पर मैम को दिया है, वार्डन मैम को, कि जो हॉस्टल के जो एडमिशन है बढ़ाया जाए, जो सीट्स है वो बढ़ाया जाए, ताकि जो कॉमर्स फैकल्टी के जो बच्चे हैं वो 50% एडमिशन जो होते हैं वो कॉमर्स में होते हैं, फिर भी यही कॉमर्स फैकल्टी के बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल रहे, साइंस फैकल्टी के बच्चों को नहीं मिल रहे, वो आर्ट्स हो या टेक्नोलॉजी हो, जो बड़ी बड़ी फैकल्टी वहाँ के विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिल रहे, जो हॉस्टल के सही में हकदार है, जो 100% जहाँ पर हॉस्टल में एडमिशन दे देते हैं, जो हॉस्टल में, हमारी बात एक ही है कि आप जो एडमिशन रेशियो है, जैसे कि 50% विद्यार्थी कॉमर्स से है तो 20% साइंस से है, 10% आर्ट्स से, तो आप एक सही साट यहाँ पर सीट्स की जो वैचनी यानी जो बार्गेनिंग होना चाहिए वो होना चाहिए। और आज हमारी यही मांग है कि सभी फैकल्टी के विद्यार्थियों को हॉस्टल में रखा जाए और हॉस्टल की जो सुविधा है उसे बढ़ाया जाए और हॉस्टल की ज़्यादा सीट्स के लिए कंस्ट्रक्शन भी बनाया जाए। आज हमने वार्डन चीफ और डिप्टी चीफ वार्डन को ये एप्लीकेशन दिया है जिसमें हमारे 2 मुद्दे सामने आए हैं। पहला मुद्दा ये है कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल की जो सीट्स अलॉटेड है आर्ट्स फैकल्टी में वो केवल 70 और 40 हैं, 40 बॉयज़ के लिए 70 गर्ल्स के लिए, जबकि इस बार एडमिशन 1100 एडमिशन हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली पहले राउंड में और दूसरे राउंड का एडमिशन बाकी है। हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट भी है, 35 से 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो लोग बिहार, गया, नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं और उनको हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ जा रहा है। वे डेली 800 से 1000 रुपये पर डे बाहर पेमेंट करके रह रहे हैं और जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा करिकुलम 1 तारीख से चालू हो चुका है, तो इसीलिए आज वार्डन मैम को हमने इस मुद्दे पे एप्लीकेशन दी। हमारा दूसरा मुद्दा ये था कि SD गर्ल्स का जो न्यू विंग कंस्ट्रक्ट हुआ है उसमें अभी तक वाईफाई राउटर नहीं दिया गया है और यूनिवर्सिटी रूल के मुताबिक आपको यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को इंटरनेट का एक्सेस दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए आज हमने रजवात की मैम से और दिन दोनों टॉपिक पे, और मैम का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था इसके लिए। VNM न्यूज़ आप देख सकते हैं youtube.com/VNM News मीडिया पर ही लॉग ऑन करें, facebook.com/VNM News पर। न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।